हम्म। मैं इसको बंद कर देता हूँ। हाँ हाँ। आपका कनेक्ट Good morning, sir. Good morning, ma'am. May I audible to you? ऑडियो नहीं आ रही, यहाँ से ऑडियो मैम की आवाज नहीं आ रही। Ma'am, your speaker is off. मेरा नहीं हो रहा है, चक्कर है। Good morning. तो बोलता हूँ इसको।
काला कौन सा वाला? Hello, may I audible to you? Yes, yes. Yes, thank you, ma'am. Good morning, everyone. Myself, Dr. Himanshu Gupta. Uh, Honorable Vice Chancellor, sir, Registrar, sir, directors, deans, various heads of the department, senior faculty members, colleagues, and my dear students. A warm welcome and a very good morning to all. Yoga, the term is derived from the Sanskrit word use, meaning to join, to yoke, or to unite. As per yogic scriptures, the practice of yoga leads to the union of individual consciousness with that of universal consciousness, indicating a perfect harmony between the mind and body and man This and meeting nature. is being recorded. The aim of yoga is self-realization to overcome all kinds of sufferings, leading to a state of liberation. This is one of the oldest science of the world, which originated in our country, India. Yoga is very useful for preserving and maintaining one's physical and mental health, and also for spiritual evolution. The practice of yoga is believed to have originated thousands of years ago, much before the first religions or beliefs systems took birth. Yoga is an art and science of healthy living. Therefore, both art and science. School of Sciences, in collaboration with School of Social Sciences and in association with IQAC, NSS, IFTM University is organizing this national webinar on human health and yoga. I would like to invite our chairman of the present webinar as well as Director of School of Sciences, Professor B.K. Singh, for the welcome address. Sir. Yes. Am I audible to? Yes, sir, you are audible. Honorable Chancellor, Sri Rajiv Potiwal sir, Honorable Pro Chancellor, Sri Abhinav Potiwal sir, Honorable Vice Chancellor, Professor M.P. Pandey sir, Registrar, Professor Sanjeev Agrawal sir, Pro Vice Chancellor, Professor Rahul Kumar Misra sir, Directors, Deans, various head of departments, faculty members, and dear students. Good morning to all. Yoga is the most perfect health and wellness module as it is comprehensive and holistic in nature. Yogic principles help to strengthen and develop positive health, enabling us to withstand stress better. Now, yoga is being practiced as an alternative healthcare practice. The number of yoga practitioners continues to rise tremendously. There are several reviews regarding the potential benefits of yoga for reducing blood pressure, other cardiovascular disease, risk factor, diabetes, glucose tolerance, insulin sensitivity, and lipid profile, etc. Nowadays, millions and millions of people across the globe
have benefited by the practice of yoga, which has been preserved and promoted by the great eminent yoga masters from ancient time to this date. The present webinar is School of Sciences along with School of Social Sciences is organizing this webinar to create the awareness of comprehensive benefits of yoga towards health at both individual and social level. It is an honor for us that eminent keynote speaker Professor Rima Dada from All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, has joined with us to discuss various aspects of human health and yoga. I am very much confident that all the participants of this webinar will be benefited from her talk. Further, I wish all the very best for the successful accomplishment of this event. I will conclude my address with the words as eat healthy and practice yoga. This is going to build your immunity. Now, Thank you, sir. I am sure all the participants must have benefited by your words of wisdom. Now, I want to invite Dr. Rajesh Kumar Shukla to introduce us about this webinar on human health and yoga. Sir. Shukla sir. Okay. हेलो हिमांशु जी, Yes, sir. Yes, join. Dr. Rajesh Kumar Shukla, sir. Your audio is off. Your audio is off, sir. ओके, Yes, sir. आई एम ऑडिबल? Yes, yes, you are audible and clear. नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम सभी यहाँ ह्यूमन हेल्थ एंड योगा विषय पर आयोजित एक दिवसीय नेशनल वेबिनार में सम्मिलित होने के लिए उपस्थित हुए हैं। इस वेबिनार में यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों, विद्वानजनों, शिक्षकों का मैं तहे दिल से सादर प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले मैं IFTM विश्वविद्यालय के परम आदरणीय माननीय कुलाधिपति श्री राजू कोठीवाल जी, प्रति कुलाधिपति श्री अभिनव कोठीवाल जी, कुल सचिव प्रोफेसर संजू अग्रवाल जी, कुलपति प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद पांडे जी, इस वेबिनार की मुख्य वक्ता परम आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर रीमा मैम जी, प्रोफेसर VK सिंह जी, प्रोफेसर राजकुमारी सिंह जी, चंद्रकांत शर्मा जी, विश्वविद्यालय के सम्मानित निदेशकगण व देश के विभिन्न राज्यों से जुड़े सम्मानित अतिथिगण, आप सभी को मेरा सादर नमन। आज आयोजित हो रहे इस वेबिनार का मुख्य उद्देश्य हम सभी को ज्ञात है। पूरी दुनिया में कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही है, जिससे बचने के लिए हम अभी तक कोई कारगर उपाय नहीं ढूंढ पाए हैं। इस अंधकार में योग एक दिए की तरह है, जो हम सभी को कोरोना के साथ साथ कई बीमारियों से निजात दिलाने में सहायक है। इस जैविक महायुद्ध में कोरोना अभी पहली चुनौती है। आने वाले समय में हम सभी के जीवन में अनेक चुनौतियां आ सकती हैं। इसके लिए हम सभी को पहले से ही सचेत रहना होगा, तभी हम अदृश्य और अनजान चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। हम सभी को योग वैज्ञानिक तरीके से सीखना होगा, ताकि इसका सटीक लाभ उठाया जा सके। योग से रहे निरोग की कहावत को डॉक्टर रीमा जी ने वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आज का व्याख्यान जन जन को लाभ पहुंचाएगा। इस वेबिनार में IFTM विश्वविद्यालय के अलावा देश के विभिन्न राज्यों के उच्च शिक्षण संस्थानों, IIT दिल्ली, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी,
हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला, दिल्ली विश्वविद्यालय, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद सहित सरकारी गैर सरकारी संस्थानों से 500 से अधिक लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। अभी भी कई प्रतिभागी वेबिनार से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो प्रतिभागी अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं, उन्हें यूट्यूब का लिंक भेजा जाएगा ताकि वे इस कार्यक्रम का लाभ उठा सके। सभी का पंजीकरण निःशुल्क है। इसी के साथ ही हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। Thank you, sir. And in view of coronavirus outbreak, the webinar on human health and yoga will be a valuable contribution to the whole society. Now, I would like to introduce our keynote speaker, Dr. Reema Dada, Professor, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. Dr. Reema Dada is MD, PhD, and is presently working as professor at All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, where she established molecular reproduction and genetic facility. He is actively engaged in teaching, research, and genetic diagnostic diseases. Dr. Dada is fellow of National Academy of Medical Sciences, International Medical Science Academy, Academy of Standards and Rating, and Indian Academy of Biomedical Sciences. Dr. Reema is pursuing research on genetic aspects of infertility, reproduction failure, recurrent heart failure, and many more. From the last 8 years, she is working on impact of yoga on the genome and epigenome. Dr. Dada has received several national and international awards, the ICMR National Award for Outstanding Contribution in the field of genetic infertility. She has also received Young Scientist Award at European American course in clinical genetics in Croatia, GP Talwar Gold Medal, Best Paper Award in Indian Society for Research in Reproduction meeting, Best Paper Award at Annual Congress of Indian Society of Andrology, and that is for also 3 times. She has delivered 5 orations, around 100 plenary and invited lectures at various meetings and conferences. Her research on genetics of glaucoma is amongst the top 2% people in the world. She won the award at American Society of Andrology meeting for her own work on genetics of reproductive disorders, and also Best Paper Award at International Symposium on Genetics of Infertility at Salt Lake City, USA. In 2019-20, she received the Award for Excellence and Innovation in Yoga Research Award at Symposium on Yoga Research at Kripalu Center, Albany, USA, and also received 24 awards for our own work on yoga in complex diseases like glaucoma, depression, aging, arthritis, etc. Dr. Dada has published greater than 150 original indexed articles in high impact factor journals, 65 chapters in books, and also developed DVT workshop manuals and over 190 abstract in American, European, international meetings journals. She is also a member of various as professional societies as well as reviewer for various national and international index journals. There is a lot more to talk about for Professor Dada, but with this brief introduction, I want to call upon Professor Reema Dada to interact with the participants. Ma'am, please. Thank you so much, Himanshu ji. And please allow screen sharing. Yes, I am allowed. It is saying host disabled participant screen sharing.
Ma'am, now you can share the screen. Yeah. Can you see my slides? Are you able to see my slides? Yes, yes. Yes, ma'am. Okay. Dhanyavad. Please accept my heartiest felicitation for the 21st on the occasion of the International Yoga Day, the 7th International Yoga Day, and giving me this opportunity to discuss about the importance of yoga in our life for health and wellness. I would like to emphasize to you that yoga plays a key role in not only promotion of health but prevention of diseases, as an adjunct in the management of diseases, as well as has tremendous rehabilitative potential. Yoga has tremendous transformative power and causes a dynamic change in gene expression. And today I will talk what is the role of yoga in human health. So योग हमारे देश में प्राचीन भारत में करीब 15,000 साल पहले इसका आदि योगी के समय से ये आदि योगी ने इसका सबसे पहले बताया था और सप्त ऋषियों ने इसका पूरे दुनिया में इसका प्रचार किया और विशेष करके साउथ इंडिया में ज्यादा फैला जहां अगस्त्य मुनि ने इसका प्रचार किया, बट क्योंकि नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा थोड़े इन्वेजन्स हुए उस कारण इसका इतना हमें नहीं दिखता, परंतु ये देखा गया है कि ये फॉलो हुआ और करीब 5,000 साल पहले महर्षि पतंजलि जी ने इसको एक योग सूत्र में पिरोया, जिसको हम पतंजलि योग सूत्र कहते हैं और जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। और ये देखा गया है कि योगा इज अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ये प्राचीन भारत की मानवता को सबसे बड़ी उपहार है। और क्योंकि ये हमारे सेजेस और ऋषि प्रैक्टिस करते थे, इस कारण हमारा देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में सबसे अग्रसर था और इसलिए हमारे देश में जैसे चरक ऋषि, सुश्रुता और आर्यभट्ट और इतने ज्यादा हमारा प्राचीन भारत सबसे आगे था ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में। हमारी इतनी महान यूनिवर्सिटीज थी जैसे कि नालंदा उज्जैन में थी, केरल में थी, गुजरात में थी और इस कारण सारी दुनिया से लोग हमारे देश में ये सीखने आते थे। तो योगा से कंप्लीट फिजिकल हेल्थ, दैट इज नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, मेंटल, इमोशनल, सोशल वेलबींग होती है, बिकॉज हेल्थ इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज बट इट इज कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग। और हम ये देखते हैं कि योगा बहुत समय से लोग प्रैक्टिस करते आ रहे हैं और इवन जब हमारी इंडस वैली सभ्यता थी वहां से भी जो रेलिक्स मिले हैं उसमें कई पता चलता है कि कई ये रेलिक्स ये दिखाते हैं कि ये लोग योगा प्रैक्टिस कर रहे थे और इस कारण देखा जाता है कि कहा जाता है कि हमारी इंडस वैली सभ्यता बहुत आगे थे अपने समय के लिए। और जो ये चीजें पाई गई हैं और ये चीजें दिखाती हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में हम लोग बहुत आगे थे क्योंकि हमारे लोग योगा बहुत समय से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। और ये बहुत जरूरी है कि हम लोग, चाहे हमारे को बीमारी हो चाहे हम हेल्दी हो, हम योग को अपनी दिनचर्या में अपनाएं क्योंकि हम इससे ऑप्टिमल हेल्थ पा सकते हैं और रादर देन कि हम डिजीज को मैनेज करें, जिसके कारण लाखों लोग हर साल कहा जाता है कि वर्ल्ड में अबाउट 153 मिलियन पीपल बीमारी के ट्रीटमेंट में इतना पैसा खर्च करते हैं कि जिसके कारण वो बिलो द पॉवर्टी लाइन आ जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम वो चीज अपनाएं जो हमारे हेल्थ को प्रमोट करे, जो हमारे वेलनेस को, ऑप्टिमल हेल्थ को प्रमोट करे रादर देन कि हम डिजीज को मैनेज करें। सो योगा क्या है? योगा का मतलब जैसे आपने बताया, इट इज यूनियन, इट इज द यूनियन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। इट इज अ यूनियन ऑफ, कहते हैं, जीवात्मा से परमात्मा तक और हमारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस यूनिवर्सल कॉन्शियस से ब्लेंड हो। सो जब मैं योग के बारे में बोलती हूँ, मैं बस आसनास के बारे में बात नहीं कर रही। आसन तो एक बहुत छोटा कंपोनेंट, अबाउट जस्ट 1.5% ऑफ द योगा इज आसनास, बट मेन एम तो ये होता है कि हमारी शरीर एक अलाइनमेंट में आए, हमारा ट्रंक अपराइट हो, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसके वो अपने अलाइनमेंट, अपने नॉर्मल कर्वेचर्स का मेंटेन करें और दूसरा कि हम अच्छी तरह प्राणायाम कर सके और उस प्राणायाम करने से हम एक मेडिटेशन और ध्यान के अवस्था में आ सके, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं। तो जब मैं योग की बात करती हूँ तो हम आसनास, प्राणायाम और मेडिटेशन तीनों को कंसिडर करते हैं जब वो योग है।
और मेडिटेशन इज जस्ट ट्राइंग टू बी अटेंटिव टू द प्रेजेंट मोमेंट इन अ नॉन जजमेंटल वे। और हम इसमें क्या चाहते हैं कि जो भी मेडिटेशन प्रैक्टिस करे, जो हम सिखाते हैं अपने यहाँ पे, हम वो अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करें। अगर ख्याल आते भी हैं तो उनको फोर्सफुली बाहर नहीं करना, उनको बस जस्ट इग्नोर करना है। सो बेसिकली जब हम योगा के बारे में जब मैं आज आपको बताऊंगी तो इट्स नॉट जस्ट आसनास। जैसे कई लोग सोचते हैं जब हम योग करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि ये आसन है, केवल एक कुछ एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज नहीं है, ये ऐसा साइंस और टेक्नोलॉजी है जिस कारणवश हम एक वेलनेस तो पाते ही है, हेल्थ और वेलनेस, पर उसमें देखा गया है कि इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं जो हम अब मेडिकल साइंस में देख पा रहे हैं। और ये तो योगा के छोटे छोटे साइड इफेक्ट्स हैं। पर जैसे फिजिकली हम देखते हैं कि हमारा रेंज ऑफ मूवमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, बैलेंस बढ़ता है। एट द मेंटल लेवल हम देखते हैं इससे हमारे में मानसिक स्थिरता, इक्वानिमिटी, हम कैसे स्ट्रेस से डील करते हैं वो उसकी क्षमता बढ़ती है, इमोशनल रेजिलियंस बढ़ती है। फिर हम देखते हैं कि योगा हमारा ये माइंड और बॉडी की अवेयरनेस बढ़ाता है। ये दिखाता है कि हम बहुत ज्यादा माइंडफुली टू इन द प्रेजेंट मोमेंट रहें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, योगा हमें बियॉन्ड एक डीपर स्पिरिचुअल स्टेट्स में ले जाता है, जिसके कारण हम ध्यान करके समझ सकते हैं कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है और इससे हम ज्यादा मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं। सो योगा, जैसे हठ योगा एम्फसाइज करता है आसनास में, राज योगा का मेन होता है कि हम मेंटल इक्वानिमिटी पाएं, जिसको हम मेडिटेशन के थ्रू पाते हैं। क्रिया योग से गीता और उपनिषद में लिखा है इसका स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। भक्ति जो योगा डिवोशन का मार्ग है। कर्म योगा की हम सेल्फलेस सर्विस करें, और जैसे आदि शंकराचार्य जी ने बताया था जिस वेदांत में ही ज्ञान योगा। सो योगा हमें इतना अच्छा साइंस और टेक्नोलॉजी है जो हमें प्राचीन भारत की सबसे बड़ी मानवता का उपहार है, जो हमें एक वॉलंटरी कंट्रोल देता है ओवर आवर इनवॉलंटरी सिस्टम्स। तो ये देखा गया है कि आजकल बहुत ज्यादा डिजीजेस बढ़ गई हैं, और ये जो रिसेंट ट्रेंड देखा गया है, जबकि हम लंबा जी रहे हैं परंतु बुढ़ापा आने के बाद इतनी ज्यादा रोग से हम लोग ग्रस्त हैं। और ये कई बीमारियां जो हमें 70-80 साल पे आती थी, अब देखा ये बच्चों में पाई गई हैं। एक स्टडी में पाया कि हर 2 से 3 बच्चे 10 में से उनको उच्च रक्तचाप, दैट इज हाई ब्लड प्रेशर है। इतनी ज्यादा बच्चों में मानसिक तनाव, अवसाद है, युवाओं को इतना ये प्लेग कर रहा है। और ये सब क्यों इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गया है, क्यों हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटीरियोरेट कर रहा है। और एक स्टडी मैंने देखी, उसमें दिखा रहे थे कि भारत में सबसे ज्यादा लोग हैं अवसाद के जो शिकार हैं। ये क्यों पाया गया है? ये इसलिए देखा गया है कि पिछले कई सालों में हमारी रहन सहन में बहुत फर्क आया है। एक तो हम पहले हंटर गैदरर सोसाइटी थे, और अब हम केवल कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं। वेरियस कोविड टाइम में तो हमने देखा है सारा वक्त हम घर पे बैठे खा रहे हैं, और हमारी लेवल्स ऑफ इनएक्टिविटी बढ़ रही है। WHO कहती है कि हमें हफ्ते में करीब 150 मिनट मॉडरेट टू इंटेंस फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। और पर देखा गया है कि 25 से 30% पॉपुलेशन का लेवल्स ऑफ इनएक्टिविटी बहुत हाई है। दूसरा, ये बहुत जरूरी है कि हम समझें कि योगा के लिए हमें कुछ ज्यादा जगह नहीं चाहिए, कुछ एक्सपेंसिव इक्विपमेंट नहीं चाहिए। केवल एक बार एक ट्रेन्ड योगा इंस्ट्रक्टर से सीख के हम योगा अपने परिवार के साथ घर के अंदर कर सकते हैं। और ये एक ऐसी पद्धति है जो बहुत सारी चीजों को टैकल करती है। फॉर एग्जाम्पल, इस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन में जहां एक बहुत फोकस्ड अप्रोच होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इनफर्टिलिटी या बांझपन है तो आपका केवल एक ऑर्गन जैसे यूट्रस, ओवरी पे फोकस किया जाएगा, थोड़ा हार्मोन्स की स्टडी की जाएगी। परंतु इतना जरूरी है, पर जितनी भी बीमारियां, ये साइकोसोमैटिक कंपोनेंट होता है। योगा एक ऐसी साइंस है जो तुम्हारे माइंड और बॉडी को एज अ होल टारगेट करती है। सो स्पेशली इन टाइम्स ऑफ कोविड, ये तो हमें एक बहुत अच्छा अवसर मिला है कि हम योग को अपनाएं अपनी दिनचर्या में, और घर के कन्फाइंस के अंदर इस सहज सरल टेक्निक को अपने दिनचर्या में अपनाएं, और एक नई ऊर्जा और उल्लास के साथ अच्छी सेहत पाएं, पूरा परिवार पाएगा, और यही नींव रखेगा एक स्वस्थ भारत की। तो ये देखा गया कि हमारी जिंदगी में बहुत चेंज आया है। एक तो हम लोग बहुत ज्यादा सेडेंटरी हो गए हैं, बैठे रहते हैं, और दूसरा हम लोग बहुत, हमारा रहन सहन बहुत गलत हो गया है। स्मोकिंग, शराब पीना,
नॉन वेज फूड खाना, देखा गया है कि WHO ने भी डिक्लेयर किया है कि नॉन वेज फूड खाने से, मीट खाने से उसको एक कार्सिनोजन का दर्जा दिया है। और देखा कि जब रेड मीट तो किल करता है, प्रोसेस्ड मीट ज्यादा फास्ट किल करता है, क्योंकि उसमें कई ऐसे पदार्थ पैदा हो जाते हैं जो हमारे को डैमेज करते हैं, कैंसर कॉज कर सकते हैं। ये भी देखा गया है कि अब हम इतना ज्यादा हमारे पे प्रेशर है मीडिया का, हम रोज ये चीजें पढ़ते हैं कि ये खाओ, अगर हम बाहर से खाएंगे तो अगला जो मील होगा वो और भी चीपर होगा। और ये स्टडीज ने दिखाया है जैसे जैसे हम बाहर से खाना खाते हैं उतना उतना हमारे मोटापे का वो मोटापा बढ़ता है, और ये भी एपिडेमिक प्रोपोर्शंस में बढ़ रहा है। और ये देखा गया है ये फूड्स ट्रांस फैट, सॉल्ट, शुगर में बहुत हाई होते हैं, ये कलरिंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स। ये एक इन्फ्लेमेटरी डाइट है, ये शरीर में सोजन पैदा करती है, ऑक्सीडेटिव तनाव पैदा करती है। और ये देखा गया है कि जब बच्चे ये वाला खाना खाते हैं तो अगले दिन उनकी स्टडीज में स्कोर्स भी कम होते हैं। तो ये हमें ये डाइट, इसको कहते थे स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट या डेडली अमेरिकन डाइट, और अब हम ये खाने लग गए हैं। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम वो खाना खाएं जो फल फ्रूट्स हैं, अनप्रोसेस्ड, अनपैकेज्ड, अनरिफाइंड, वो चीजें हमें ज्यादा खानी चाहिए। तो ये देखा गया है कि कई चीजें हैं जैसे कॉम्प्लेक्स डिजीज हैं जिनमें ये पाया गया है कि ये जो डिजीजेस हैं इनके कॉमन अंडरलाइंग मैकेनिज्म है। ये कॉमन अंडरलाइंग मैकेनिज्म्स हैं जैसे कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक एक्टिवेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऑक्सीडेटिव तनाव, डिसरेगुलेटेड हमारा जीन एक्सप्रेशन। और देखा गया हमारे टीलोमियर्स छोटे हो जाते हैं, और टीलोमियर्स के छोटे होने के कारण हम देखते हैं हमारा बुढ़ापा जल्दी आता है। टीलोमियर छोटे होने का मेन कारण हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन है। जिन लोगों को अवसाद होता है कहते हैं कि वो जल्दी ज्यादा उनको बुढ़ापा पकड़ता है, और ऑक्सीडेटिव तनाव के कारण हमारा बायोलॉजिकल एज ज्यादा होता है। तो ये देखा, मैं सबसे पहले अब थोड़े से एग्जांपल्स दूंगी जो हमारी स्टडीज के हैं कि कैसे हम लोग कई कॉम्प्लेक्स डिजीजेस को टैकल कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स डिजीजेस क्या हैं? कॉम्प्लेक्स डिजीजेस वो डिजीजेस हैं जो जीन्स और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन के साथ पाई जाती हैं। तो कई जीन्स हैं और ये एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे कि हमारा रहन सहन, हमारी सोशल हैबिट्स, लाइफस्टाइल फैक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करके ये बीमारियां होती हैं। ये बहुत जरूरी है समझने के लिए कि हमारे पास केवल 2 to 3% ऐसी जीन्स होती है जिनकी म्यूटेशन के कारण हमें डिजीज होती है। रेस्ट बाकी जितनी भी डिजीजेस हैं वो हमारे डिजीज होने की चांसेस बढ़ा देते हैं। सो दे इंक्रीज द ससेप्टेबिलिटी टू द डिजीज बट दे आर नॉट कॉजल। और ये देखा गया है, पहले बिलीव किया जाता था कि अगर हमें हमारा जो जेनेटिक मेकअप है वो डेफिनेटली हमारी बायोलॉजी को, हमारे हेल्थ और डिजीज स्टेट को डिटरमिन करता है, परंतु ये जरूरी है समझना कि हमारा रहन सहन, हमारे थॉट्स, जो हमारे में पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं और जो हमारी हैबिट्स हैं, ये हमारे जीन एक्सप्रेशन को डिटरमिन करता है, जिसको हम एपिजेनेटिक्स कहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हमारा रहन सहन, हमारी हैबिट्स, क्योंकि देखा गया जो हमारी अच्छी हैबिट्स हैं वो गुड जीन प्रोग्राम्स को ऑन कर देती हैं, और जो अनहेल्दी हैबिट्स हैं जैसे मानसिक तनाव, बहुत बेचैनी रहना, अवसाद, और ये डाइट, ऐसा खाना जो इतना इन्फ्लेमेटरी डाइट है, फास्ट फूड, जंक फूड खाने से हमारे ऐसे जीन प्रोग्राम्स ऑन होते हैं जिसके कारण इन्फ्लेमेशन होता है, जिसके कारण अगर ये क्रॉनिक बन जाए ये ऑटो इम्यून डिजीजेस और कैंसर तक ले जाता है। तो बहुत जरूरी है कि हम अच्छी हैबिट्स अपनाएं, क्योंकि मेजॉरिटी जो जीन्स हैं उनका एक एडिटिव इफेक्ट होता है जो हमारे डिजीज होने के चांसेस को बढ़ा देते हैं। विज वो 2 to 3% जीन्स, जैसे कि वो जीन्स हैं जिनमें म्यूटेशन, जैसे ब्रेका जीन है, उसमें अगर म्यूटेशन हो, चेंज आए तो फिर कैंसर होता ही होता है। बट जो बाकी सारी जीन्स हैं वो बस तुम्हारी चांस ऑफ हैविंग द डिजीज को बढ़ाती हैं। और परंतु और इसलिए अगर हम अपनी जीवन शैली को सुधारें तो जैसे डिजीजेस लाइक उच्च रक्तचाप, डिप्रेशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ये काला मोतिया, स्पेशली प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, ऑटोइम्यून डिजीज, इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, जैसे कि गठिया बाइकर रोग, और जैसे ये बांझपन। ना बांझपन के कई कारण होते हैं। मैं आपके साथ आज अनएक्सप्लेन्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी के बारे में बताऊंगी। और ये देखा गया है कि रिसेंट डिकेड्स में बहुत जल्दी ये ना बांझपन के केसेस बढ़ गए हैं, और ये बिलीव किया जाता था कि बांझपन का कारण केवल फीमेल्स में होता है, औरतों में होता है, परंतु अब देखा गया कि आधा कारण
ये आदमियों में है जिनके शुक्राणु की क्वालिटी खराब हो जाती है, और ये देखा गया है कि ये देखा गया है कि कि आधा कारण आदमियों में है, और उस कारण ये पाया गया है कि जो इनके शुक्राणु होते हैं इनमें डैमेज इकट्ठा हो जाता है, और ये डैमेज राइट फ्रॉम बचपन से पैदा होता है। और एज कंपेयर टू फीमेल कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी, ये पाया गया है कि ये लोग अपने ये शुक्राणु, जैसे मैं आपको बताऊंगी, ये शुक्राणु अपने डैमेज को ठीक नहीं कर पाते। तो 50% केसेस ऑफ बांझपन आर ड्यू टू अनएक्सप्लेन्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी। एक सेकेंड, दे आर ड्यू टू अनएक्सप्लेन्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, और इसका कारण है एक तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जिसके कारण कई ऐसे केमिकल्स वातावरण में हैं जो हमारे जर्म सेल, ये शुक्राणु बनने की क्षमता को कम करते हैं, शुक्राणु को डैमेज करते हैं। ये बहुत जरूरी है समझना कि ये जो डैमेज होता है, ये सारे जो केमिकल्स होते हैं, हर केमिकल ये कार्सिनोजन नहीं होता या म्यूटेजन नहीं होता, परंतु ये कई चीजें हमारे डीएनए पे एक्ट करते हैं, और वो डीएनए के एक्सप्रेशन पैटर्न को चेंज करते हैं, यानी कि हमारे एपिजीनोम को इफेक्ट करती हैं। इन एडिशन टू दैट हम कई प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जैसे कि दूध इन थैलियों में आता है, ये पानी को हम इन बॉटल में पीते हैं, इनमें प्लास्टिसाइजर्स होते हैं जो ईस्ट्रोजन्स के जैसे होते हैं, और ये एंटी एंड्रोजेनिक केमिकल्स होते हैं, और अगर ये मदर प्रेग्नेंट हो और इनमें ये एंडोक्राइन केमिकल्स की मात्रा ज्यादा हो, जैसे कि मीट में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जानवर ये जो खाते हैं घासमाल जिनमें इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स होता है, ये भी मिमिक करते हैं ईस्ट्रोजन्स को और एंटी एंड्रोजेनिक होते हैं। इस कारण जब एक विमेन के गर्भाशय में एक मेल बच्चे का ग्रो कर रहा होता है, तो ये मेल जेनिटो-यूरिनरी डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। इन एडिशन टू दैट, मैंने आपको डाइट का तो बताई है, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, हर समय बैठे रहना, फास्ट फूड, एक्सेसिव यूज ऑफ सेल फोन, ये सब हमारे शुक्राणु को डैमेज करता है। और ये कितना क्लियरली कहता है कि ये सब खाने से हमारा रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट इफेक्ट होता है, और स्टडीज ने दिखाया है कि सीमन क्वालिटी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, जेनेटो-यूरिनरी डेवलपमेंट इफेक्ट होता है अगर हम मीट खाते हैं। सो स्टडीज ने दिखाया है जंक फूड खाने से आदमियों में और औरतों में, ये खाने से वो सन्स के स्पर्म को अफेक्ट करता है। टेस्ट ट्यूब बेबीज अगर जब हम पैदा होते हैं उनमें ज्यादा चांसेस हैं इनफर्टिलिटी के, ज्यादा सेल फोन यूज करने से इनफर्टिलिटी होती है, और जो हमारा ये रहन सहन, खाना, ये जो फास्ट फूड खाने से और मोटापा आता है, और वो मेन कारण है कैंसर्स का। और ये सब चीजें दिखाती हैं कि कितना हमारे रहन सहन ने हमारी लाइफ को अफेक्ट किया है। तो ये हमारी स्टडीज ने दिखाया है कि जो सारे कारण हैं। Excuse me, there is one important announcement that this video will get off, so everyone has to rejoin with the same link. Even I have to rejoin. Everyone has to rejoin with the same link. Even I'll have to do that again. Yes, ma'am. Okay. Okay. So ये देखा गया है कि सारे फैक्टर्स हमारे न्यूक्लियर और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में क्षति या डैमेज पहुंचाते हैं, और उससे हमारा डीएनए अनस्टेबल हो जाता है, जिस कारण उसके जो टीलोमियर्स हैं वो छोटे होते हैं।
This meeting is being recorded. Is the screen visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Visible and clear. थैंक यू, वेरी गुड। तो ये देखा गया है कि ये ऑक्सीडेटिव तनाव पैदा होता है इन कारणों से, ये डाइट से, और इस कारण हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियर डीएनए में क्षति पहुंचती है, डैमेज होता है, वो नष्ट होता है और उससे कई प्रोडक्ट्स बनते हैं जिसके कारण डीएनए जो एक कार्सिनोजेनिक प्रो-म्यूटोजेनिक मॉलिक्यूल माना जाता है, दैट इज 8-hydroxy-2-deoxyguanosine, और इससे वो म्यूटेशंस और म्यूटेशंस होती हैं। और इस कारण देखा गया है कि शुक्राणु है उसमें सबसे ज्यादा डैमेज होता है, क्योंकि शुक्राणु जब बनता है वो अपनी एंटीऑक्सीडेंट शेड कर देता है और उसका न्यूक्लियर डीएनए बहुत कॉम्पैक्ट होता है, जिस कारण उसकी रिपेयर मैकेनिज्म भी साइलेंट होते हैं। तो उस कारण देखा गया कि जब ऑक्सीडेटिव तनाव के कारण जो हमारे जीवन शैली के गलत हैबिट, सोशल हैबिट के कारण होता है, मानसिक तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी, सेल फोन ज्यादा यूज करना, फास्ट फूड खाना, ड्रिंकिंग, अल्कोहल और शादी भी डिले करने से और लेटर बच्चा पैदा करने से भी देखा गया है कि ऑक्सीडेटिव तनाव ज्यादा होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में डैमेज एक्यूमुलेट होता रहता है। और इस कारण डीएनए के डैमेज होने से नॉट ओनली बांझपन देखा गया है, पर अगर ये लोग प्रेग्नेंट भी हो जाते हैं विमेन, इस शुक्राणु की खराबी के कारण ये पाया गया है कि उनमें जो बच्चा बार बार गिर जाता है, रिकरेंट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस होते हैं, कॉन्जेनिटल मैलफॉर्मेशंस होते हैं, तो इसका कारण आदमी में पाया गया है। और ये वो कारण है जिनमें हम सारे फीमेल फैक्टर्स को रूल आउट कर लेते हैं कि उनमें कोई खराबी नहीं है, फिर हम मेल फैक्टर में देखते हैं और उन कारण चाइल्डहुड कैंसर, बच्चों में कैंसर, बच्चों में कॉम्प्लेक्स न्यूरोसाइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स लाइक बाइपोलर डिसऑर्डर, शिज़ोफ्रेनिया, चाइल्डहुड डिप्रेशन पाया गया है। और डोमिनेंट जेनेटिक डिजीजेस का कारण ये देखा गया है जब स्पर्म में डीएनए डैमेज हो। तो इस कारण बताया ये हमें फिजिशियंस कमेटी फॉर रिस्पॉन्सिबल मेडिसिन कहती है कि हमें 10 सर्विंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लेने चाहिए, पर ये बहुत जरूरी है समझना कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें हमारी कंट्री में कितने लोग 10 सर्विंग अफोर्ड कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगी कि योगा कैसे हेल्प करता है। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में डेफिनेटली फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, परंतु इसमें कई ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके कारण हमारी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी बढ़ती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेटिव तनाव जब होता है जब हमारे फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं और जो हमारी एंटीऑक्सीडेंट उनको फाइट करने की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, और वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से मिलती है। परंतु हम देखेंगे कि कैसे योगा इसमें हेल्प करता है। तो हमारी स्टडी में दिखाया है कि लार्ज प्रतिशत आदमी होते हैं जिनमें ये ऑक्सीडेटिव तनाव ज्यादा होता है और उस कारण डीएनए में डैमेज होता है। ये हमने डीएनए आपको ये दिखाया है जिसमें हमने फ्लोरेसेंस डाई के कारण स्टेन किया है, और आप देख सकते हैं कि कंट्रोल्ड केसेस में जो सारा फ्लोरेसेंस है वो हेड के रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड है। ये दिखाता है कि डीएनए हेल्दी है और डीएनए में डैमेज नहीं है। परंतु अगर आप देखें ये वाले जो हमारे बांझपन के केसेस हैं, फादर की जो शुक्राणु है उसका डीएनए बहुत कम है हेड रीजन में, और उनके ये टेल बहुत बड़े बड़े हैं ये वाला। इसका मतलब ये है कि उनमें डीएनए डैमेज है जिसके कारण डीएनए में क्षति हुई है और वो फ्रैगमेंट हुआ है। इसी तरह हम ये देखते हैं इसको डीएनए डैमेज को हम लोग स्टडी करते हैं, जिस कारण हम देख सकते हैं कि ये जो शुक्राणु टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस हैं वो डैमेज्ड हैं, और एज कंपेयर टू कंट्रोल जिनमें ज्यादातर वाई एक्सिस की तरफ होते हैं, इनफर्टाइल केसेस में ज्यादा शुक्राणु डैमेज है इसलिए वो एक्स एक्सिस की तरफ है। तो उसके बाद हमने देखा कि जो ऑक्सीडेटिव तनाव होता है ये टीलोमियर्स को सबसे ज्यादा डैमेज करता है, और टीलोमियर्स हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। तो अगर डीएनए में डैमेज होता है इस कारण हम देखते हैं कि हम सोचते हैं कि जो इनफर्टिलिटी और बांझपन है ये एक एक्सेलरेटेड टेस्टिकुलर एजिंग है, और हमें ऑप्टिमल लेवल चाहिए होते हैं फ्री रेडिकल्स के जिसके कारण हमारा ये टीलोमियर्स मेंटेन हो। तो और नहीं तो कम ज्यादा से ये लेवल्स ये टीलोमियर्स छोटे हो जाते हैं, और इसलिए जरूरी है कि हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स का इनडिस्क्रिमिनेट यूज ना करें। और हमारी स्टडी में दिखाया है कि
हम कितने कई एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं, उनका कोई असर ही नहीं होता हमारे डीएनए पे, केवल उसका असर स्पर्म मेम्ब्रेन पे होता है, जिसके कारण उसकी मोटिलिटी इंप्रूव कर जाती है, जिसके कारण वो फर्टिलाइज तो कर पाता है पर उसके अंदर डीएनए डैमेज रहता है। तो हम ये डीएनए डैमेज के लेवल्स एग्जैक्टली कैलकुलेट कर पाए थे, जिसके बियॉन्ड कपल स्पॉन्टेनियसली कंसीव नहीं कर सकता। तो ये इसको हम डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स कहते हैं। और ये हमने क्वांटिफाई किया कि डीएनए डैमेज का मेन कारण क्या है। डीएनए डैमेज का मेन कारण ऑक्सीडेटिव तनाव है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, जो स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन से, एक्सपोजर टू इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड से बढ़ता है। और ये जो कंपाउंड होता है ये हमारे डीएनए को नष्ट करता है और उसमें कई चेंजेस लाता है, जिनको हम म्यूटेशंस कहते हैं, जो हानिकारक है। हमारी स्टडीज ने ये दिखाया है कि हमने क्या किया, फिर ये देखा गया था कि जिन लोगों का डीएनए क्वालिटी बैड होता है उनके बच्चों में, फादर से बच्चों में आंखों का कैंसर, ल्यूकीमिया ज्यादा पाया गया, कई चाइल्डहुड कैंसर होते हैं। और फिर हमने वो बच्चे स्टडी करे जिनकी फैमिली में कैंसर नहीं रन कर रहा था, तो फैमिली में नहीं था, इट वाज नॉट फेमिलियल कैंसर, परंतु उनमें फर्स्ट टाइम इस बच्चे में कैंसर पाया गया और उनकी फादर को हमने, जिनको हम स्पोरेडिक कैंसर कहते हैं, उनकी फादर्स का हमने स्पर्म का डीएनए स्टडी किया और हमने देखा कि इन केसेस में डी नोवो जर्मलाइन म्यूटेशंस और एपीम्यूटेशंस थे, जिस कारणवश इनके ये जो डीएनए, क्योंकि फादर अपने डीएनए को पूरी तरह करेक्ट नहीं कर सकता, रिपेयर नहीं कर सकता, मैंने आपको बताया था, क्योंकि डीएनए बहुत कॉम्पैक्ट होता है। इस कारण ये डीएनए देन बच्चे में चले जाता है अंडे के साथ फ्यूज होने के बाद। अंडे में अंडा पूरी कोशिश करता है, जो माँ में जो ओसाइट होता है वो पूरी कोशिश करता है डैमेज को रिपेयर करने के लिए, परंतु जब डीएनए डैमेज बहुत ज्यादा होता है वो डैमेज फिर फर्टिलाइजेशन के बाद हर सेल ऑफ द जाइगोट में चले जाता है और जो डेवलपिंग बच्चे में, और उस कारण पोस्ट जाइगोटिक म्यूटेशन होती है, बच्चे में जेनेटिक और एपिजेनेटिक डिजीजेस होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इस स्टडी के लिए हमने जैसे आपको बताया ये वाले केसेस इंक्लूड करे थे जिनमें कैंसर फैमिली में नहीं रन कर रहा था, और आप देख सकते हैं कि उनके फादर्स में फ्री रेडिकल लेवल्स और डीएनए डैमेज नॉर्मल से कितना ज्यादा है। तो और नॉट ओनली दिस, हमने ये भी देखा कि जिन लोगों में बार बार बच्चा गिर रहा है उन लोगों में भी द लेवल ऑफ ये फ्री रेडिकल्स की मात्रा बहुत ज्यादा है और उन लोगों का ये डीएनए डैमेज भी ज्यादा है, ये हम देख पाए हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ योगा का क्या असर होता है इनकी क्वालिटी पे। हमने ये सारे पैरामीटर स्टडी करे और हम ये देखते हैं कि जैसे ही हमने ये प्रैक्टिस किया तो स्टैंडर्ड सीमन पैरामीटर्स में इंप्रूवमेंट आई, मोटिलिटी में इंप्रूवमेंट आई और फ्री रेडिकल्स की मात्रा कितनी सिग्निफिकेंटली कम हुई है। पर क्योंकि अभी ये वाली स्टडी में हमने केवल 21 डेज दिया, पर हमने देखा कि जब हम 6 महीने 180 दिन योगा प्रैक्टिस करते हैं, 6 महीने में डीएनए की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आता है। फ्री रेडिकल्स की मात्रा तो केवल 21 दिन में कम हो गई है, बहुत सिग्निफिकेंट, बट डीएनए डैमेज जो इतने समय से हो रहा था उसको इंप्रूवमेंट में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। और जैसे मैंने आपको कहा कि फल और वेजिटेबल्स खाने से ये एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी बढ़ती है, तो ये हम देखते हैं कि जब हम योगा करते हैं तो कितनी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी बढ़ती है। तो टोटल एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी बढ़ रही है, और ये क्यों बढ़ रही है? क्योंकि योगा हमारे डीएनए को इम्पैक्ट कर रहा है और डीएनए के उन जीन्स का एक्सप्रेशन बढ़ा रहा है जो हमारे लिए फायदेमंद है, लाभदायक है, और जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट जीन्स की मात्रा बढ़ा रहा है। और ये फर्स्ट स्टडी थी जिसने दिखाया कि योगा सर्टुलेंस को भी बढ़ाता है, ये लॉन्जेविटी जीन्स होती हैं। और पहले बताया गया था कि अगर हम 100 ग्लासेस रेड वाइन के पिए उससे रेस्वेट्रॉल बढ़ता है, उस रेस्वेट्रॉल बढ़ने से सर्टुलेंस बढ़ता है, परंतु हमारी स्टडी ने दिखाया कि कोई हमें रेड वाइन पीने की जरूरत नहीं है, परंतु अगर हम योगा प्रैक्टिस करें तो इससे इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हम हमारी एजिंग, बुढ़ापा आना हम डिले कर सकते हैं, क्योंकि ये डिफेंस मैकेनिज्म को अप करता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो प्रोडक्ट होता है जो इतना ज्यादा डीएनए में क्षति पहुंचाता है, जिससे डीएनए में चेंजेस आते हैं, म्यूटेशंस आती हैं और एपीम्यूटेशंस आती हैं, उसकी मात्रा योगा प्रैक्टिस करने से कम होती है। और जबकि पाया गया कि एंटीऑक्सीडेंट्स का डीएनए पे इतना असर नहीं होता, बहुत ही कम एंटीऑक्सीडेंट्स डीएनए की थेराप्यूटिक लेवल्स पे पहुंच के असर करते हैं, पर योगा में देखा गया कि इनकी मात्रा योगा प्रैक्टिस करने से ये ऑक्सीडेटिव डीएनए अडल्ट जो इतना म्यूटेशंस और एपीम्यूटेशंस कॉज करता है उसकी मात्रा कम होती है।
और हम देखते हैं टीलोमियर्स जो टीलोमियर्स जो एंड्स ऑफ क्रोमोसोम में पाए गए हैं, जो हमारी एज को डिटरमिन करते हैं, काफी फैक्टर से डिटरमिन होते हैं, पर इनके चीफ फैक्टर होते हैं ऑक्सीडेटिव तनाव जो हमारे रहन सहन से रिलेटेड है, और ये टीलोमरेज लेवल और एक्टिविटी से। तो हमने देखा कि ऑक्सीडेटिव तनाव तो कम हो ही रहा है, टोटल एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी बढ़ रही है, और उसके साथ साथ टीलोमरेज एक्टिविटी बढ़ती है, जिस कारण ये इंप्रूवमेंट पाई गई है कि टीलोमियर लेंथ मेंटेन होती है। और ये बहुत ज्यादा फायदा है, बिकॉज इससे सिग्निफिकेंस नॉट ओनली स्पर्म डीएनए में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परंतु इससे ये पूरे शरीर पे, तो जैसे मैंने बताया, योगा शरीर के हर एक सेल में एक्ट करता है। इस कारण हम अपना बुढ़ापा भी डिले कर सकते हैं और ज्यादा लंबा और सेहतमंद जिंदगी जी सकते हैं। और हम देखते हैं कि पहले बताया गया था कि एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन योगा केवल उनको ट्रांसमिट करता है, योगा, सॉरी जस्ट 1 मिनट, सॉरी आई डोंट नो लाइंस कैसे आ रही हैं, ये कैसे ये लाइंस, आई डोंट जस्ट 1 मिनट, somebody is using it, लोग कोई पार्टिसिपेंट में से, हाँ, क्योंकि मैं तो नहीं हिला रही हूँ, ये कौन कर रहा है, मेरी साइड स्लाइड्स पे ऐसे आ रहा है। एक मिनट, लेट मी ट्राई टू रेज दिस, जस्ट 1 मिनट, हाँ एक सेकेंड। एक सेकेंड, ये जा ही नहीं रहा, एक सेकेंड। तो मैडम हमको तो क्लियर दिख रहा है, हट गया है। हाँ, नहीं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन स्पर्म नॉट ओनली ट्रांसमिट करता है डीएनए को, बट आरएनए भी ट्रांसमिट करता है, और उसकी लेवल जब मात्रा सही नहीं होती, वो भी देखा गया है कि वो उस कारण बांझपन हो सकता है, बच्चे बार बार गिर सकते हैं। और योगा प्रैक्टिस के बाद इन लेवल्स का भी नॉर्मलाइजेशन होता है, क्योंकि योगा जीनोम पे ही नहीं एपिजीनोम पे भी एक्ट करता है, और जैसे जैसे हमारे ये ऑक्सीडेटिव तनाव कम होता है, उससे ये मिथाइलेशन मार्क्स जो डिटरमिन करते हैं कौन सी जीन कब एक्सप्रेस करती है, वो नॉर्मलाइज होते हैं। और हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन जिसके कारण जो ऑक्सीडेटिव तनाव के कारण बढ़ जाता है, वो लेवल भी कम होने शुरू हो जाते हैं। और कई जीन्स का एक्सप्रेशन लेवल योगा से ऑल्टर होता है, जैसे कि अबाउट 442 जीन्स जब हमने स्टडी करी, ये स्टडी हमने सीसीएमबी हैदराबाद डॉक्टर राकेश मिश्रा के लैब के साथ करी थी, और हमने देखा कि कई जीन्स जिनका जो लाभदायक है उनका एक्सप्रेशन लेवल बढ़ता है, वो हाइपोमिथाइलेट हो जाती है, और कई जीन्स जो थोड़ा इन्फ्लेमेशन कॉज करती है, एनहांस एपोप्टोसिस करती है, उनकी मात्रा कम हो जाती है, बिकॉज वो हाइपरमिथाइलेट हो जाती हैं। और हमने ये देखा कि जब हमने ये स्टडी 6 महीने करी, तो आप देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ स्पर्म डीएनए है टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, उनकी मात्रा कम हो रही है, शोइंग कि हमारा डीएनए की क्वालिटी बढ़ रहा है। अब मैं आपसे बात करती हूँ कि योगा कैसे एक ऑटो इम्यून डिजीज को ऐड करता है। मैं आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में बात करूंगी, जो गठियाबाई का रोग कहते हैं, और ये देखा गया है कि ये नॉट ओनली जॉइंट्स पे एक्ट करता है ना, ये बहुत सीवियर क्रॉनिक प्रोग्रेसिव आर्थराइटिस है, जिसमें कोमॉर्बिड डिप्रेशन होता है, इंसान व्हीलचेयर पे आ जाता है, दूसरे की हरकत मदद लेनी पड़ती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटीरियरेट होता है। नॉट ओनली ये जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, पर देखा गया है कि एक्स्ट्रा आर्टिकुलर सिम्टम्स भी कॉज करता है, जैसे कि हार्ट, लंग्स, ये हार्ट को, लंग्स को, ब्रेन को, स्किन को अफेक्ट करता है। और हमारी स्टडी ये रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स थी, जिसने दिखाया है कि जब हमने इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, ये दोनों ग्रुप्स डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स ले रहे थे, और हमने ये देखा कि जब ये जो ग्रुप योगा प्रैक्टिस कर रहा था, उनका डिजीज एक्टिविटी स्कोर ज्यादा जल्दी इंप्रूव हुआ, और उनका जो कोमॉर्बिड डिप्रेशन था उसकी सिविरिटी कम हुई। ये समझने के लिए कि योगा ने कैसे हेल्प किया कि ये लोग जिनको इतना सिवियर क्रॉनिक प्रोग्रेसिव पेनफुल आर्थराइटिस थी, उनमें क्यों कमी आया, क्यों इंप्रूवमेंट आई। तो हमने देखा कि कई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि सी रिएक्टिव प्रोटीन। अब सी रिएक्टिव प्रोटीन इवन कोविड में बढ़ता है, तो योगा करना चाहिए। जब आप देख सकते हैं कि कितना इसका लेवल कम हुआ है। और कई ऐसे इंफ्लेमेटरी साइटोकाइंस हैं, जैसे कि ये IL-17, जिसके कारण जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है, वो लेवल इतना बढ़ जाता है योगा से, उसका मात्रा कम होती है। और ये जितने भी इंफ्लेमेटरी साइटोकाइंस हैं, इससे इसकी मात्रा कम हुई है। IL-6 के कारण
ये एक्स्ट्रा आर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं। कोविड में भी जो एक्स्ट्रा ये जो हम देते हैं ना, जो साइटोकाइन स्टॉर्म, जिसके कारण स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज देनी होती है, जो इतनी महंगी होती हैं, वो IL-6 के बढ़ने से होती है। तो अगर हम योगा करें तो इनका लेवल भी हम कम रख सकते हैं। और नॉट ओनली इंफ्लेमेटरी साइटोकाइंस की मात्रा कम हुई है, पर जो एंटी इंफ्लेमेटरी साइटोकाइंस है उनकी मात्रा बढ़ी है। और हमने ये भी देखा कि जिन केसेस में एक ससेप्टेबिलिटी जीनोटाइप था, जिस कारण ये ऑटोइम्यून डिजीजेस होती हैं, उनका भी लेवल बढ़ा, HLA-G का लेवल बढ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये प्रॉब्लम फैमिली में रन कर रही है और ये लोग प्रैक्टिस करें योगा, तो इसकी मात्रा बढ़ सकती है, जिस कारण जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो बहुत माइल्ड होगा और हमें जो डिजीज दवाई की मात्रा है वो कम लेनी पड़ेगी। और उससे ये भी होगा कि हमारे जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी, रेंज ऑफ मूवमेंट, मसल कोऑर्डिनेशन ज्यादा होगा। ये भी देखा गया, हमने फ्लो साइटोमेट्री स्टडीज करी कि योगा इम्यून होमोस्टेसिस बढ़ाता है और ये किस कारण करता है कि जो हार्मफुल सेल्स हैं, जैसे जो सेल्स TH17 सिक्रीट कर रहे हैं उनकी मात्रा कम होती है, जो सेल्स इम्यून होमोस्टेसिस इम्यून मेंटेन करते हैं, T रेगुलेटरी सेल्स, उनकी मात्रा बढ़ती है। और ये जैसे मैंने आपको बताया, चाहे कोई भी डिजीज हो, कॉम्प्लेक्स लाइफस्टाइल डिजीजेस, इनमें ऑक्सीडेटिव तनाव होता है, ऑक्सीडेटिव DNA डैमेज होता है, टीलोमियर शॉर्टनिंग होती है। और हम ये देखते हैं कि ऑक्सीडेटिव तनाव की मात्रा कम हो रही है, DNA डैमेज की मात्रा कम हो रही है। और ये समझने के लिए क्यों होता है, हमने माइटोकॉन्ड्रिया स्टडी किया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करता है। और हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही हमने जिन लोगों ने योगा प्रैक्टिस किया, उनका माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल इंप्रूव हुआ। कई जीन्स जो माइटोकॉन्ड्रियल कोई इंटेग्रिटी मेंटेन करते हैं, उनकी मात्रा बढ़ी। और ये NAD मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूल है, जिसकी लेवल्स कम हो जाते हैं बुढ़ापा आने से। और ये न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में क्रॉस टॉक होता है, क्योंकि कई प्रोटीन्स न्यूक्लियस में बनते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं, जो ऊर्जा, जो ATP बनाने में मदद करते हैं, वो ये क्रॉस टॉक मेंटेन करता है। पर जब इसकी मात्रा कम हो जाती है, इसको वन ऑफ द मेन कॉजेस एजिंग के साथ रिलेट किया गया है, उसकी मात्रा योगा प्रैक्टिस करने से बढ़ रही है। और हमने ये भी देखा कि माइटोकॉन्ड्रियल कॉपी नंबर इससे बढ़ता है। इन एडिशन टू दैट, हम ये पाते हैं कि योगा काला मोतिया पे भी एक्ट करता है। काला मोतिया जो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा है, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा भी एक कॉम्प्लेक्स डिजीज है। पहले ये बिलीव किया गया था कि काला मोतिया हमारे रेटिना, जो आंख के अंदर रेटिना, जो आंख का पर्दा होता है, उसमें कई सेल्स होते हैं जिनको हम रेटिनल गैंग्लियन सेल्स करते हैं, उसका डैमेज इंट्राओकुलर प्रेशर से होता है ज्यादा बढ़ने से। परंतु अब पाया गया है कि ये इन्फ्लेमेशन, एक्सेसिव एनहांस्ड एपोप्टोसिस, ब्लड फ्लो डिसरेगुलेट होने के कारण, और कई फैक्टर्स हैं जैसे न्यूरोट्रोफिक फैक्टर्स के कमी होने से ये पाया गया है कि ये काला मोतिया होता है। और हमारी स्टडीज ने दिखाया है, जिसको हमने ट्रेविकुलम एश्रोफ में स्टडी किया, कि कई ऐसे तत्व हैं जो प्रमोट करते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी को, जो रेटिनल गैंग्लियन सेल्स को नरिश करते हैं, जो ब्लड फ्लो को रेगुलेट करते हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, उनकी मात्रा बढ़ती है। और कई फैक्टर जो रेटिनल गैंग्लियन सेल्स को डैमेज करते हैं, उनकी मात्रा कम होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि डिप्रेशन का, योगा का डिप्रेशन अवसाद पे क्या असर है। देखो, जैसे स्टडी आई कि हमारी कंट्री में सब बहुत ज्यादा लोग हैं जिनको स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन होता है। और ये भी रैंडमाइज कंट्रोल स्टडीज थी, और जिसमें दो ग्रुप थे। एक ग्रुप था जिसने योगा प्रैक्टिस किया, वो भी, और एक ग्रुप था जिसने योगा नहीं प्रैक्टिस किया। तो ये पाया गया है कि सेरोटोनिन की मात्रा कम होने से अवसाद होता है। और ये जो सेरोटोनिन एनालॉग्स हैं, ये सबसे ज्यादा ड्रग्स हैं जो ये सेल होती है मार्केट में। और ये इतना इंपॉर्टेंट है समझना कि अपोजिंग ड्रग्स के इतने साइड इफेक्ट्स होते हैं, परंतु आप देखो योगा प्रैक्टिस करने से इनकी मात्रा बढ़ रही है। और कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो BDNF, DHA, इनकी जो ये फैक्टर्स न्यूरोप्लास्टिसिटी को प्रमोट करते हैं। पहले ही सोचा जाता था कि जितने हम न्यूरॉन से पैदा होते हैं उतने ही रहते हैं और उनकी मात्रा नंबर कम होते रहते हैं। पर अब स्टडीज ने दिखाया है कि जो लोग योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनकी ग्रे मैटर ज्यादा बड़ा होता है, बढ़ता है, जिसके कारण दिखाया है कि न्यूरोजेनेसिस होती है, सिनेप्टोजेनेसिस प्रमोट होती है, जिस कारण हमारा मेमोरी, लर्निंग, अटेंशन, माइंडफुलनेस, कॉग्निशन बढ़ता है।
हमारा अवेयरनेस बढ़ती है, हम ज्यादा माइंडफुली प्रेजेंट रहते हैं और कंसंट्रेशन बढ़ती है। सो योग यही नहीं कि वो लोग प्रैक्टिस करें जिनको अवसाद है, जिनको कोई बीमारियां हैं। हर युवा, हर पर्सन, चाहे वो यंग हो, ओल्ड हो, चाहे उसको बीमारी हो चाहे ना हो, किसी भी कहते हैं किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे स्कूल का स्टूडेंट हो, चाहे वो 80 साल 90 साल का इंसान हो, अगर वो योगा प्रैक्टिस करेंगे तो उनके ब्रेन की एजिंग भी स्लो डाउन होती है, क्योंकि कई फैक्टर्स होते हैं जो ब्रेन के, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी फैक्टर्स हैं, वो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस ला रहे हैं ब्रेन में। जो हमारा मेमोरी का सेंटर हिप्पोकैम्पस है उसका साइज बढ़ता है, जो एमिगडाला है, जो स्ट्रेस का सेंटर है, उसका साइज कम होता है। और हम ये भी देखते हैं कि हमारा एक हार्मोन है मेलेटोनिन, जो हमारा स्लीप वेट साइकिल रेगुलेट करता है, उसकी मात्रा बढ़ती है। और मेलेटोनिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट भी है जो ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया गया है, और माइटोकॉन्ड्रिया की इंटेग्रिटी को भी इंप्रूव करता है। देयरफॉर ये हेल्प करता है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में डैमेज होता है, जिस कारण जो एटीपी, जो ऊर्जा देता है हर सेल को, उसकी मात्रा कम होती है। फिर ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, जिससे ऑक्सीडेटिव तनाव होता है। सो योगा प्रमोट्स न्यूरोप्लास्टिसिटी। और हम देखते हैं योगा से जो कॉर्टिसोल हार्मोन है, जो स्ट्रेस हार्मोन है, उसकी मात्रा कम होती है। और कॉर्टिसोल ऐसा हार्मोन है जो ब्रेन के न्यूरॉन्स को डैमेज करता है। और कई ऐसे तत्व जैसे टोटल एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी को, वेरियस फैक्टर जो न्यूरोप्लास्टिसिटी प्रमोट करते हैं, उनकी मात्रा को कम करता है। पर ये देखा गया कि कॉर्टिसोल इटसेल्फ, जो स्ट्रेस हार्मोन है, उसकी मात्रा कम होती है। जिन लोगों में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन होते हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन ज्यादा होती है, उसकी भी मात्रा कम हो रही है। और इसीलिए पाया गया कि जिन लोगों में ज्यादा स्ट्रेस होती है, ज्यादा जो डिप्रेस्ड होते हैं, वो लोग ज्यादा जल्दी बुढ़ापे की तरफ पहुंचते हैं और उनमें कई बीमारियां अर्लियर ऑनसेट होती है। पर अगर हम योगा प्रैक्टिस करें, हम वो भी डिले कर सकते हैं। और वो भी आप ये देख सकते हैं कि योगा के डिप्रेशन वाले लोगों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पाया गया है, देखो फ्री रेडिकल्स की मात्रा ज्यादा है, और उनमें टीलोमेरेज एक्टिविटी और टीलोमेयर लेंथ छोटी थी, वेयर योगा प्रैक्टिस करने के बाद उसकी मात्रा बड़ी है। और हमने काफी जीन स्टडी करी और हमने देखा कि जिन लोगों में डिप्रेशन है, जो जीन्स डिसरेगुलेट होती हैं, जैसे कि ट्यूमर सप्रेसर जीन है, जो हमारी डीएनए इंटेग्रिटी को मेंटेन करती है, जो कैंसर को प्रिवेंट करती है, उसकी मात्रा कम हो जाती है। परंतु योगा प्रैक्टिस करने के बाद उसकी मात्रा बढ़ती है। और चाहे हमारा कोविड जीनोटाइप हो, ये देखा गया कि योगा ने अबाउट 60% पेशेंट्स में अवसाद के रिमिशन में, डिप्रेशन के केसेस रीच रिमिशन, वेयर जस्ट 33% केसेस जो ड्रग्स पे थे उनको रिमिशन हुई। और चारों डोमेन्स क्वालिटी ऑफ लाइफ के शोड एन इम्प्रूवमेंट जब इन्होंने योगा प्रैक्टिस करी। और ये लास्ट फ्यू स्लाइड्स हैं जिसमें मैं दिखाना चाहती हूँ कि योगा का क्या असर है बुढ़ापे पे। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं रिसर्च पे कि हम कैसे लंबा जी सकते हैं और यंग लग सकते हैं। और हमारी स्टडीज ने दिखाया है कि अगर हम योग प्रैक्टिस करें तो हम अपनी बायोलॉजिकल एज को कम कर सकते हैं, और हमारी क्रोनोलॉजिकल एज चाहे 70 साल की हो, हम अपनी बायोलॉजिकल एज को काफी कम रख सकते हैं। बिकॉज योगा हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीडेटिव तनाव कम करते हैं, ऑक्सीडेटिव डीएनए डैमेज कम होता है, टीलोमेयर की लेंथ मेंटेन होती है। और बहुत ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे कि सर्टोइन्स जो डिफेंस मैकेनिज्म को अपरेगुलेट करते हैं। एंड क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी फैक्टर्स इंक्रीज होते हैं, सो हम लंबा भी जिएंगे और हमारे माइंड में जैसे कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है, याददाश्त की शक्ति कम होती है, अल्जाइमर्स सेट इन हो जाता है, भूलने लगते हैं, ये सब भी डिले होगा, क्योंकि वेरियस फैक्टर जो ब्रेन को स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली चेंज करते हैं टुवर्ड्स अ हेल्दियर ब्रेन, तो हमारा ब्रेन भी यंगर रहता है और हम लोग लंबा भी जी सकते हैं और एक सेहतमंद जिंदगी भी जी सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ एजिंग इज द माइटोकॉन्ड्रियल थ्योरी ऑफ एजिंग। इसमें पाया गया कि माइटोकॉन्ड्रिया की डैमेज से, क्षति से हम लोग एज करते हैं, क्योंकि फ्री रेडिकल ज्यादा बनते हैं। और हमारी स्टडीज ने दिखाया है कि माइटोकॉन्ड्रियल कॉपी नंबर बढ़ता है, ऑक्सीडेटिव तनाव कम होता है, की मॉलिक्यूल जैसे एनएडी बढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल बढ़ता है और माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्थ बढ़ती है। सो मैं इसी से ये एंड करना चाहती हूँ ये टॉक कि अगर हम योग को अपनी जीवन शैली में अपनाएंगे, एक ज्यादा फल और प्लांट बेस्ड डाइट अपनाएंगे, और योग तो एक जीवन का जीने का एक तरीका है, जैसे इसके ये 8 हैं ये योगा के।
तो हम ये देख सकते हैं कि हम एक नई ऊर्जा से, एक नए उमंग उत्साह से एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, जिससे एक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य हम पा सकते हैं और एक नए स्वस्थ भारत की नींव रख सकते हैं। थैंक यू। Thank you, ma'am, for the wonderful session. Now I want to invite any participants who directly want to ask any question. If somebody has any question, he can ask directly. There is one question, ma'am. What the Delta and Lambda variant of coronavirus, how these can be resolved by using yoga? How yoga can affect these variants? Or the thing is, I do not know regarding the specific variants, but let me tell you two things. That stress, anxiety, and high levels of depression and the fear of getting COVID results in depressing our immune system. So if you practice yoga, you can decrease the levels of stress, prevent stress, anxiety, depression, and thus help to keep our immune system functioning optimally. Secondly, the cytokine storm that occurs is because of exaggerated, dysregulated immune system. There it has an exaggerated response because increase in IL-6 levels results in the cytokine storm. And as I showed you, our studies have shown that if you practice yoga, the CRP levels, the IL-6 levels come down. So it can act on as a whole on yoga would be beneficial if people as a whole practice yoga. It would be beneficial. Right. I do not know again specific variants, but the basic two things that the CRP levels are raised, they will go down. The IL-6 levels are raised, they will be going down. And the high levels of stress and anxiety and depression cause a dysregulation. They decrease our immunity, and the immunity will enhance if you practice yoga. It will be maintained at optimal levels. There will be immune homeostasis, right? yes, ma'am. Thank you, ma'am. It is a very wonderful session. And I hope everyone has been benefited with this talk. If any other participant has any question, he can ask directly. He can unmute himself and ask directly. There is one more question. How can one free from depression? Anybody? As I told you that अगर आप योगा प्रैक्टिस करें, स्पेशली जिन लोगों को अवसाद है या डिप्रेशन है, उनको हम ये ज्यादा एम्फसाइज करते हैं कि वो लोग एक्टिव ज्यादा करें रादर देन मेडिटेशन. द ओनली रीजन इज क्योंकि जिन लोगों में अवसाद होता है तो उनका फिर मन इधर उधर और विचलित हो जाता है. तो हम उनको कहते हैं कि क्रियाज में जलनेति करें, कपाल भारती करें, जो आसनास है उन्हें कहते हैं सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस करें, धनुरासन करें, सर्वांगासन करें. फिर हम उन्हें कहते हैं भस्त्रिका करें, अनुलोम विलोम करें. और जब वो मेडिटेट करें तो वो अपनी ब्रेथ अवेयरनेस के साथ मेडिटेशन करें. इस कारण जैसे मैंने आपको बताया कई फैक्टर्स जो ब्रेन को नरिश करते हैं, जो ब्रेन में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस लाते हैं, जिनको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी फैक्टर्स कहते हैं, वो हमारे न्यूरॉन्स को नरिश करते हैं. जो सेरोटोनिन लेवल्स की कमी के कारण अवसाद होता है, वो सेरोटोनिन लेवल्स बढ़ते हैं और इस कारण ये सिवियरिटी ऑफ डिप्रेशन हम डील कर सकते हैं. हाँ, अगर बहुत सिवियर डिप्रेशन है, यू वुड नीड द हेल्प ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कि आप ड्रग्स भी लें और योगा करें. और ये इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि डिप्रेशन इज जस्ट नॉट अ डिजीज ऑफ द माइंड, इट इज अ माइंड बॉडी डिजीज. अगर डिप्रेशन होता है तो वो हमारे हर सेल, हमारे ऑर्गन सिस्टम को अफेक्ट करता है. और जब हमें कई बीमारियां होती हैं उनके साथ कोमॉर्बिड डिप्रेशन होता है. तो हाँ, अगर बहुत माइल्ड डिप्रेशन है, मॉडरेट है, वी शुड बी डूइंग योगा, जिसके कारण ये लेवल्स बढ़ेंगे तो ये उसकी सिवियरिटी को कम करेगा. सो योगा इज अ वेरी गुड वे ऑफ टैकलिंग विद डिप्रेशन. बट हाँ, अगर आपको बहुत सीवियर डिप्रेशन है, definitely consult a psychiatrist and take medicines and also do yoga. Ma'am, one of our students, Sumi Chobe, she want to ask one question to you. That is, our mind is voluntary or involuntary? This is from our student. There are certain in the brain
there are certain activities which are voluntary and certain activities which are involuntary. For example, when you want to do something, for example, you want to pick up something, that is a voluntary action because it is you have decided to do something. For example, there are so many things going out in front of you. For example, I am presenting this, but there in front of you, since you're sitting at home, maybe there is a plate of pakoras in front of you, and there is this screen in front of you. You may be having a cup of tea in front of you. You may be having a watch in front of you. You decide what you want to see. For example, there must be some people who are rather seeing the time कि कब खत्म होगा, कब से घंटे से ये बोल रहे हैं. कई लोग हैं जो कुछ खा रहे होंगे, कई लोग हैं जो इसको देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे. ये सारा voluntary है because your brain decides what to do and what is necessary at a particular time. हाँ, कई सेंटर्स हैं जो इनवॉलंटरी है. फॉर एग्जाम्पल, जब आप वॉक करते हो आपका बैलेंस रहता है. दीज आर ऑल इनवॉलंटरी बिकॉज इट इज हैपनिंग एट द लेवल ऑफ द ब्रेन स्टेम एंड cerebellum. These are involuntary actions which are happening without your conscious input, right? So there are certain things which are voluntary and certain things which are involuntary. But the most important thing to remember is yoga helps to gain voluntary control over your involuntary functions. For example, जब आपने देखा होगा, जब आपको गुस्सा आता है आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ती है. जब आप स्केर्ड होते हो आपकी ब्रीदिंग शैलो हो जाती है और बिल्कुल डिफरेंट होती है, राइट? उसी तरह ये देखा गया कि अगर हमारे डिफरेंट इमोशन से हमारे ब्रीदिंग रेट चेंज हो जाता है तो हम क्यों ना अपने ब्रीदिंग रेट को रेगुलेट करके अपने माइंड की स्टेट्स को चेंज करें. फॉर एग्जांपल, इसलिए योगा में कहा गया है कि अगर हम अपने इनहेलेशन को एक्सहेलेशन, हमारे इनहेलेशन छोटा और एक्सहेलेशन लंबा, या अगर हम अपनी ब्रीदिंग को लंबा श्वासायाम कहते हैं या प्राणायाम, हम वैसे तो ये श्वास है, श्वासायाम उसको हम प्राणायाम बोलते हैं. अगर हम श्वास को लंबा करें, स्लोअर एंड डीपर, उससे देखा गया है कि हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, जो हमारे लिम्बिक और सब कॉर्टिकल ब्रेन स्टेम सेंटर्स होते हैं, जहाँ पे ये सेंटर्स हैं, उसमें ये एक्ट करता है, जिसके कारण पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स आता है. पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स हमारे डीएनए रिपेयर, रेस्ट को हेल्प करता है. सो योगा हेल्प्स टू ब्रिंग अबाउट voluntary control over involuntary functions. Thank you. Thank you, ma'am. I think there is no more question. So I want to. Like yoga Yes, are good for concentration. you can ask directly. Yeah, I just see here Rahul Naliwal has asked that is yoga good for concentration? Oh yes, yoga is very good for concentration because as I told you, it is increasing various factors which are enhancing neuroplasticity, and there are several studies which have shown, functional MRI studies and MRI studies which have shown that various factors will promote neuroplasticity increase, and also the thickness of gray matter increases, the neurogenesis increases in key areas which helps to enhance memory, learning, attention, awareness, concentration. So yoga is very, very good for concentration, being mindfully present whatever you are doing. So this is really very useful. Yes. I have a question, ma'am. Hanji, Alka ji, Dr. Alka, please ask me. Yes, ma'am. Yes, ma'am. There is Dr. Alka Sharma, she wants to ask a question. Yeah, ma'am. Good afternoon, lady and ma'am. Good afternoon. नहीं मेरे मुझे हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है. हाँ जी, हाँ जी. हाँ जी, मुझे एक प्रॉब्लम है मैम, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है. कई महीनों पहले से स्टार्ट हुई थी ये, तो मैंने इसके लिए फिजियोथेरेपी भी कराया 1 महीने और काफी मुझे आराम मिला. मैं ये चाहती हूँ कि क्या स्लिप डिस्क के लिए कोई योगा में कुछ ऐसा योग है किया जाए जिससे कि इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके? मैं आपको बस ये बताना मतलब ये मैं एम्फसाइज करना चाहती हूँ सभी को कि जब भी योगा बहुत सहज और सरल है, सभी लोग कर सकते हैं, चाहे वो हेल्दी हो, चाहे वो दिव्यांगजन हो, कोई भी विकलांगता हो, कोई भी उम्र हो, सभी लोग योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं. बट एक बात मैं जरूर एम्फसाइज करना चाहती हूँ कि जब भी आप योगा करें,
आप पहले योगा एक ट्रेन इंस्ट्रक्टर से सीखें। जिन लोगों को स्लिप डिस्क है वो ये ध्यान करें कि फॉरवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइजेस नहीं करनी। डेफिनेटली योगा विल हेल्प यू, इट विल हेल्प, योगा डिक्रीजेस द पेन, but you must practice asanas after consultation with the trained yoga instructor who will tell you which exercise, which asanas to do, which not to do, and gradually when it gets better, then you can start doing other asanas, right? Thank you. Thank you. Thank you, ma'am, for wonderful lecture. Now, I would like to invite Professor Rajkumari Singh. She is Director, School of Social Sciences, and also the co-chairman of the present webinar for the vote of thanks. Rajkumari, ma'am, please. Hello, am I audible? Yes, ma'am, you are audible and clear. आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रोफेसर राजकुमारी सिंह IFTM विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज की ओर से ह्यूमन हेल्थ एंड योगा विषय पर आज आयोजित हुए इस नेशनल वेबिनार में उपस्थित सभी अतिथियों, विद्यार्थियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस वेबिनार से जुड़े। सबसे पहले मैं IFTM विश्वविद्यालय के चांसलर सर माननीय श्री राजीव कोठीवाल जी, प्रो चांसलर सर श्री अभिनव कोठीवाल जी, VC माननीय प्रोफेसर MP पांडे सर, रजिस्ट्रार प्रोफेसर संजीव अग्रवाल जी, प्रो VC प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिनके सहयोग और आशीर्वाद के कारण यह वेबिनार सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। मैं वेबिनार की मुख्य वक्ता एवं एम्स नई दिल्ली की प्रोफेसर डॉक्टर रीमा दादा मैम का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिनका व्याख्यान बेहद ज्ञानवर्धक रहा जो कि हमेशा याद रखा जाएगा। आपके ज्ञानवर्धन व्याख्यान से विद्यार्थियों के साथ साथ हम सभी का भी ज्ञानवर्धन हुआ है, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ और यह उम्मीद करती हूँ कि आप भविष्य में भी हमारे विश्वविद्यालय और हमारे स्कूल के विभिन्न विभागों को अपना कीमती सहयोग प्रदान करती रहेंगी। मैं दूरदर्शन के चंद्रकांत शर्मा जी का भी बहुत आभारी हूँ जिन्होंने डॉक्टर रीमा जी जैसी प्रख्यात चिकित्सक को हमारे विश्वविद्यालय से जोड़ा। सर, हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। इसके साथ ही मैं विश्वविद्यालय के समस्त स्कूलों के डायरेक्टर्स और समस्त विभागों के हेड्स का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जो अपना बहुमूल्य समय देकर इस वेबिनार से जुड़े और वेबिनार को सफल बनाया। इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए मैं प्रोफेसर BK सिंह जी, केमिस्ट्री विभाग के विभागाध्यक्ष